بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الجبیرۃ و نحوہا، یہ فصل ہے پٹی اور اس کے مثل کے بیان میں۔ یعنی جب جسم کے کسی حصے پر کسی شخص نے پٹی باندھی ہو یا پھر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹا ہو تو اس صورت میں اس کپڑے یا پٹی پر مسح کرنا کیسا ہے یا اس کو دھلنا، اس کے بیان میں ہے یہ فصل۔ اذا افتصد او جرح او قصر عضوه فشده بخرقة او جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على اكثر ما شد به العضو۔ جب کسی شخص نے پچھنا لگوایا یا اس کا کوئی عضو زخمی ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو اس نے کپڑے کے ٹکڑے سے اس کو باندھا یا پٹی سے باندھا، اس عضو کو پٹی سے باندھا اور وہ اس عضو کو دھلنے پر قادر نہیں ہے، اس عضو کو دھل نہیں سکتا ہے، جسم کے اس حصے کو دھل نہیں سکتا ہے اور نہ ہی اس حصے کو مسح کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اس چیز پر مسح کرنا واجب ہے جس چیز سے اس حصے کو باندھا ہو۔ یعنی جب کسی شخص کے جسم کے کسی حصے پر، کسی ایسے حصے پر جس کا غسل یا وضو کے اندر دھلنا واجب ہے، تو کسی ایسے حصے پر اس نے زخم ہو گیا، اس کے کسی ایسے حصے پر زخم ہو گیا یا پھر وہ حصہ ٹوٹ گیا یا پھر اس نے پچھنا لگوایا، یعنی کہ جسم میں فاسد خون ہوتے ہیں تو جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر کے وہ خون نکالا جاتا ہے، تو اس کو پچھنا لگوانا کہتے ہیں۔ تو پچھنا لگوانے کی وجہ سے اس نے پٹی بندھوائی، تو ایسی صورتوں میں پٹی یا پھر کپڑے کے ٹکڑے سے اس نے اس حصے کو باندھ لیا تو اب وہ اس حصے کو تو دھل نہیں سکتا ہے، نہ ہی اس حصے پر مسح کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو اس حصے کو نہ ہی دھل سکتا ہے نہ ہی اس پر مسح کر سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے واجب ہے اس شخص کے لیے کہ وضو یا غسل کرتے وقت وہ اس حصے کو جس چیز سے باندھا ہے، یعنی پٹی یا کپڑے کا ٹکڑا وغیرہ، اس پر مسح کر لے، ٹھیک ہے، اس پر مسح کر لے اور اس کے اکثر حصے پر مسح کرے، یہ واجب ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی پٹی یا پھر کپڑے کا ٹکڑا جو تھا جس سے اس نے اس عضو کو باندھا تھا جہاں پر زخم ہو گیا تھا، تو اس کپڑے یا پٹی پر وہ اکثر حصے پر مسح کر لے، تو اس کے لیے اس حصے کو دھلنا یا اس کا مسح کرنا یہ اسی کے قائم مقام ہو جائے گا، اس عضو کو دھلنے یا پھر اس پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پٹی پر ہی مسح کر لے۔ وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ إِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ، اور اس پر مسح کرنا کافی ہے جو پچھنا لگوانے والے کی پٹی کے درمیان سے ظاہر ہو۔ یعنی جب کسی شخص نے پچھنا لگوایا اور اس جگہ پر پٹی باندھی جہاں سے اس نے خون نکلوایا ہے، اس حصے پر پٹی باندھ لی، تو اب اس حصے پر جہاں پٹی باندھی ہے اس کے علاوہ اس حصے کا جو حصہ ظاہر ہے اس حصے پر مسح کر لینا کافی ہے، اس حصے کو دھلنا واجب نہیں ہے۔ غسل یا وضو کے اندر اس باقی حصے کا دھلنا واجب نہیں ہے، نہ ہی اس کو دھلنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پانی لگنے کی وجہ سے پانی زخم تک پہنچ جائے، جہاں سے خون نکالا ہے اس جگہ پر پہنچ جائے تو اسے تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں کہا کہ اسی حصے پر جو حصہ ظاہر ہے اس حصے پر بھی مسح کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو پٹی ہے اس پر بھی مسح کر لینا کافی ہے۔ والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدت، اور مسح کرنا یہ دھلنے کی طرح ہے تو وہ کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا، یعنی کپڑے یا پٹی وغیرہ جو باندھی ہے اس نے جسم کے حصے پر، اس حصے پر مسح کر لینا یہ بالکل اس حصے کو دھلنے کی طرح، اس پٹی یا اس کپڑے کے ٹکڑے پر مسح کر لینا یہ اس حصے کے دھلنے کی طرح ہے، تو جب اس حصے کو وہ دھل رہا تھا تو اس صورت میں اس کا دھلنا یہ کسی وقت کے ساتھ موقت نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ اس کا دھلنا ایک وقت کے لیے ہے، اس وقت کے ختم ہونے کے بعد اس کا دھلنا بھی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ یعنی کہ مان لیجیے اگر اس نے ابھی
वुज़ू बनाया और अभी उस वुज़ू को उसने धुल लिया अपने जिस्म के हिस्से को, तो ये ज़रूरी नहीं था कि एक यानी अगले नमाज के आने के वक्त या फिर कोई भी एक वक्त ऐसा नहीं था कि उस वक्त के आने से उसका उस वुज़ू को धुलना ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसको फिर से उस वुज़ू को धुलना पड़ता, ऐसा नहीं था। तो ऐसे ही इस मसा के अंदर भी नहीं है कि उस पर मसा कर लेने के बाद वो किसी वक्त तक के लिए नहीं होता है, जब तक उसका वुज़ू नहीं टूटेगा तब तक उस पर मसा बाकी रहेगा। जिस तरह मसाल खुफ़ैन के अंदर था कि मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात तक मसा बाकी रहता है, तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। पट्टी पर जब तक वो वुज़ू उसका नहीं टूटेगा तब तक उस पर मसा बाकी रहेगा। जिस तरह के उस वुज़ू को धुलने के वक्त होता था कि उस वुज़ू को जब तक उसका वुज़ू नहीं टूटता था उस वुज़ू का धुलना नहीं टूटता था, ठीक है। ऐसे ही इस पर मसा करने की सूरत में भी होगा। वला युश्तरतो शद्दुल जबीरती अला तुहरिन, और पट्टी का पाकी पर बांधना शर्त नहीं है, पट्टी के पाकी पर बांधने की शर्त नहीं लगाई जाती है। यानी ऐसा नहीं है कि पट्टी जब भी बांधे तो वो वुज़ू करने के बाद ही पट्टी को बांधे तभी उस पर मसा कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मसाल खुफ़ैन के अंदर था कि जब वो मोज़ों को जब वो पहनेगा तो उस वक्त उसका वुज़ू कर लेना ज़रूरी है, या सिर्फ पाँव का धुल लेना उसके फ़ौरन बाद वुज़ू कर लेना ये ज़रूरी था, वरना वो उस मोज़ों पर मसा नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसको पट्टी को पाकी पर ही बांधे, चाहे पाकी पर बांधे या नापाकी पर बांधे, दोनों ही सूरतों में वो गुस्ल या वुज़ू की हालत में उस पर मसाह कर सकता है, कोई शर्त नहीं है पाकी पर बांधने की। वह यजूज़ु मसहु जबीरती इहदर रिजलैनि मा गस्लिल उखरा, और जायज़ है दोनों पैरों में से किसी एक की पट्टी पर मसा करना दूसरे पैर को धुलने के साथ साथ। यानी उसके एक पैर में तकलीफ़ है, यानी कि ज़ख्म हो गया है या फिर पैर टूट गया है जिस पर उसने पट्टी बांधी है, तो उस पट्टी पर और दूसरा पैर सही है तो सिर्फ पहले पैर को जिस पर ज़ख्म या फिर टूट गया है पैर, उस हिस्से पर पट्टी बांधी है तो उस पट्टी पर सिर्फ मसा कर लेना ये ज़रूरी, ये जायज़ है। उस पट्टी पर मसा कर लेना और दूसरे पैर को धुल लेना, ठीक है, जायज़ है ऐसा। और मसाल खुफ़ैन के अंदर ऐसा नहीं था कि एक पैर को धुल ले, एक पैर पर मोज़ा पहन के एक पैर पर मसा कर ले और एक पैर को धुल ले, उसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक पैर पर पट्टी बंधी है तो एक पर ही मसा करे और दूसरे को धुल ले, ये जायज़ है उसके लिए। वला यब्तुलुल मसहु बिसुक़ूतिहा क़ब्लल बुरई, और मसह बातिल नहीं होगा पट्टी के गिर जाने की वजह से सेहतयाबी से पहले, यानी कि उसे अभी तक सेहत हासिल नहीं हुई है और पट्टी गिर गई, खुल करके पट्टी गिर गई, तो अब उसने जो मसा किया है वो मसा बातिल नहीं होगा। यानी उसने मसा किया था उसके बाद उसका वुज़ू नहीं टूटा था, तो अभी तक उस पट्टी के गिर जाने के बाद भी वो उसी वुज़ू से नमाज पढ़ सकता है, उसी मसा से। वुज़ू करते वक्त उसने उस पट्टी पर मसा किया था और मसा करने के बाद वो पट्टी खुल करके गिर गई और उसे अभी तक सेहतयाबी हासिल नहीं हुई है, जो तकलीफ़ थी उसकी वो दूर नहीं हुई है, तो अभी भी वो उस मसा से, उस वुज़ू के साथ जो उसने मसा किया था उस मसा से वो नमाज पढ़ सकता है, दोबारा मसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वयजूज़ु तब्दीलुहा बिग़ैरिहा, और उसको उस पट्टी के अलावा से बदल देना जायज़ है। वला यजिबु इआदतुल मसहि अलैहा, और उस पर मसा का इआदा करना वाजिब नहीं होगा। वल अफ़ज़लु इआदतुहु, और उसका इआदा कर लेना ये अफ़ज़ल है। यानी एक पट्टी बांधी है, अब पट्टी के लिए कुछ वक्त होते हैं, मतलब एक ही पट्टी हमेशा नहीं बांधी रहती है, उस पट्टी को खोल करके दूसरी पट्टी भी बांधी जाती है, बदली जाती है पट्टी, तो उसने उस पट्टी को दूसरी पट्टी से बदल दिया, तो अब दूसरी पट्टी के बदलने के बाद उस दूसरी पट्टी पर दोबारा मसा करना ये उसके लिए वाजिब नहीं है। और हाँ, उस दूसरी पट्टी पर मसा कर लेना दोबारा ये अफजल है, ठीक है। और अगर उसने दूसरी पट्टी पर मसा नहीं किया फिर भी उसका पहले जो उसने मसा किया था वो मसा अभी भी बाकी है। अगर उसे कोई नाक़िज़ वज़ू वगैरह लाहिक़ नहीं हुए हैं तो उस सूरत में वो उसी मसा से नमाज वगैरह अदा कर सकता है, और इआदा कर लेना मसा का ये अफजल है। वइज़ा रमीदा व उमिरा अल्ला यग़सिला आइनहु अव इनकसरा ज़ुफ़ुरुहु व जअला अलैहि दवाअन व अलकन औ जिल्दता मिरारतिन
वज़र्रहु नज़उहु जाज़ा लहुल मसहु। और जब किसी शख्स के आँख में तकलीफ़ हो और उसे ये हुक्म दिया जाए कि वो अपनी आँख न धुले, या फिर किसी शख्स के नाखून टूट गए हों और उसने उस पर यानी नाखून की जगह पर दवा या फिर गोंद या फिर पित्ते का चमड़ा लगाया हो और उस चीज़ का उतार देना यानी दवा या फिर गोंद या पित्ते के चमड़े का, पित्ते की खाल का उचाड़ देना उसे तकलीफ़ दे रहा हो तो उसके लिए जायज़ है मसह कर लेना। यानी जब किसी शख्स के आँख में तकलीफ़ हो गई हो, कोई किसी बीमारी या किसी और वजह से उसकी आँख में तकलीफ़ हो और डॉक्टर उसे ये हुक्म दे कि अपनी आँखों को न धुलो, तो उस सूरत में वज़ू या गुस्ल करने के वक्त वो आँखों पर मसा कर ले, उसके लिए ये जायज़ है। और ऐसे ही जब किसी शख्स के नाखून टूट गए या और उसने उस नाखून टूट गया जब, तो उसने उस नाखून की जगह पर दवा लगाई या फिर गोंद या फिर पित्ते का चमड़ा लगाया, पित्ते की खाल लगाई, तो अब उस दवा का या उस चमड़े का, पित्ते के उस चमड़े का या फिर गोंद का निकालना उसे तकलीफ़ दे रहा है, उसको निकालने की वजह से उसे दर्द हो रहा हो, तो उसके लिए जायज़ है कि वो उसी दवा पर या फिर गोंद पर या उसी चमड़े पर मसह कर लें, ये उसके लिए जायज़ है। वइन ज़र्रहुल मसहु तरकहु, और अगर उसे मसह करना भी तकलीफ़ दे रहा हो तो उसे छोड़ दे, यानी उन चीज़ों पर दवा और चमड़े वगैरह पर मसह करना उसे अगर तकलीफ़ दे रहा हो, उस पर मसह करने से भी उसे दर्द हो रहा हो तो उस पर मसह करना भी छोड़ दे। वला यफ्तक़िरु इला नियति फ़ी मसहिल खुफ़े वल जबीरति वर्रासे, और नियत की ज़रूरत नहीं है मोज़ों पर और पट्टी पर और सर पर मसह करने की सूरत में। मोज़ों पर मसह करना हो या फिर पट्टी पर या सर पे मसह करना हो, इसके लिए किसी अलग से नियत की कोई ज़रूरत नहीं है।